I am going to tell you just that because it's a marathon. 2 साल कम से कम प्रिपेयर करना पड़ता है और सिर्फ स्वॉर्ड से काम नहीं चलेगा. जब तक वॉरियर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा, बिकॉज बैटल्स आर वॉन बाय गुड वॉरियर्स, नॉट बाय स्वॉर्ड्स. सो जब हमको लगता है कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इनफ, डोंट आस्क योर सेल्फ कि व्हाट बेटर कैन आई डू. Ask yourself, how can I study better the same things, because that's what is needed. Momentum. आप सोर्सेज बढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं 7-8 घंटे पढ़कर इनफ नहीं कर रहा था, तो अपने सोर्सेज बढ़ा लिया, आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो. आपका इनपुट इंक्रीज हो रहा है, बट आउटपुट क्या वही सब्जेक्ट अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, आपके घंटे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है. बर्नआउट इज नॉट इक्वल टू हार्ड वर्क. जब हम इस केस में आते हैं कि इनपुट इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट दिख नहीं रहा है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या करते हैं, यूपीएससी इज नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर यूपीएससी. ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बच्चा यूपीएससी कर सकता है इफ यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स. विद अ प्लान even 6 stable days are powerful, and without a plan 7 दिन भी बेकार है, 7 क्या 70 दिन भी बेकार है. And I've lived that, I've been on both the sides of the journey. Hello dear students, my name is Chisleen Kaur and I welcome you all to Sarthi IAS. So before we even begin today's session and I dig in deeper to the topic of the day, I will be asking you or putting you in one situation. Imagine you're witnessing a war and there are 2 parties to the war. On one side, there is an ordinary warrior who has a very good sword, very nice sword. On the other hand, there is a skilled warrior, but his sword is ordinary. Who do you think would win the battle? Now, I asked this question in real time to my students in one of the sessions that I had recently, and you would be surprised to the answer. Majority of the students had answered that the warrior, who himself is ordinary but his sword is sharp, would win the battle. Now think deeply that there's a small child who is unskilled, who doesn't know about war. You give him world's best war. Would he still win the war? No. This is the confusion, this is the problem even in civil services, that they focus on the sword and not the warrior itself. The warrior, the hero in this journey is you. The resources, the books, the coaching, everything is just a means to an end. It's a sword. But unfortunately, the first question that students ask when they prepare, it's not about what are the qualities or traits they need to develop. They ask what is the kind of sword that they need to have, which coaching, which resources, please strategy बता दो, सब कुछ बेस्ट चाहिए. बट उसको करने के लिए जो हीरो है, जो वॉरियर है, उसका क्या? ये जो ट्रेट्स होते हैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के, ये सबसे पहला क्वेश्चन एक बच्चे के मन में आना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ताकि इस प्रिपरेशन में मैं बरकरार रह सकूं. एंड टुडे I am going to tell you just that because it's a marathon. 2 साल कम से कम प्रिपेयर करना पड़ता है और सिर्फ स्वॉर्ड से काम नहीं चलेगा. जब तक वॉरियर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा, बिकॉज बैटल्स आर वॉन बाय गुड वॉरियर्स, नॉट बाय स्वॉर्ड्स. Fine. So today we are going to talk about the traits, the essential traits of a successful UPSC aspirants. Let's go ahead. तो अक्सर बच्चों को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारा सिलेबस, बहुत कम टाइम और बहुत सारा कंपटीशन. वाइल द लैटर, दैट इज़ कम टाइम तो है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, वो सब सच है, लेकिन कंपटीशन में 90% बच्चे एक ही गलती कर रहे हैं, दैट इज़ हैविंग अ ह्यूज सिलेबस. ये जो बड़ा सिलेबस की प्रॉब्लम है, ये यूपीएससी ने आपको नहीं दी है, ये आपने अपने लिए खुद क्रिएट करी है. आप इमेजिन करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम पे लगता होगा कि आई एम नॉट डूइंग इनफ. व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ, व्हाट डू यू फोकस ऑन स्टडिंग बेटर, getting the quality of your study better, or you open YouTube and look at XYZ number of videos and look at strategies and keep changing your strategies and your sources. Many students, 90% of the students जिनको आप अपना competition मानते हो, वो यही गलती कर रहे हैं. They are not studying. They are not studying. They are increasing, collecting resources.
सो आप अब मुझको बताओ, क्या आपका कंपटीशन टफ है या फिर सिलेबस बड़ा है? टाइम की कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम जब आप अपना कंटेंट इंक्रीज करोगे, आपका सिलेबस भी बड़ा होगा, उसकी वजह से टाइम भी कम फील होगा, काम बढ़ेगा, समय कम हो जाएगा और कंपटीशन से तो आप बाहर ही हो जाओगे। एक्चुअल गेम में तो 10-15% लोग ही हैं, 10 to 15% लोग ही हैं जो सेल्फ अवेयर हैं, जिनको सारी चीज़ों की समझ है और वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेबिलिटी यूपीएससी आपके लिए क्रिएट नहीं करता है, इंस्टेबिलिटी सिर्फ रिजल्ट तक है। बट प्रेपरेशन में जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है वो यूपीएससी ने क्रिएट नहीं करी, वो आपको समझना पड़ेगा, हम खुद क्रिएट करते हैं। सो जब हमको लगता है कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इनफ, डोंट आस्क योरसेल्फ कि व्हाट बेटर कैन आई डू। Ask yourself, how can I study better the same things, because that's what is needed, momentum. So दैट्स थिंग द थिंग। नाउ अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप सोर्सेज बढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं 7-8 घंटे पढ़कर इनफ नहीं कर रहा था, आप अपने सोर्सेज बढ़ा लिया, आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, आपका इनपुट इंक्रीज हो रहा है, बट आउटपुट क्या क्या, वही सब्जेक्ट अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, आपके घंटे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। बर्नआउट इज नॉट इक्वल टू हार्ड वर्क, पीरियड। बर्नआउट हार्डवर्क नहीं होता है। हम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अगर अपने आप को बर्नआउट कर लेंगे कंटेंट इंक्रीज कर कर तो वो हार्डवर्क होता है, ऐसा नहीं होता है। हमको इंश्योर करना है हमारा इनपुट एक स्टेबल लेवल पर रहे, बट आउटपुट बढ़ता जाए। और आउटपुट तभी बढ़ेगा जब हम कंटेंट को क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे। वी सीक एक्सेलेंस। सक्सेस के पीछे भागोगे तो कंटेंट कलेक्ट करते रहोगे, एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो सेम कंटेंट को बेटर करोगे। एक छोटा सा प्रिंसिपल है, सबकी तरफ से आपने सुना होगा, बट कई बार हमको रीजनिंग पता होनी बहुत ज़रूरी होती है, विच आई जस्ट प्रोवाइडेड। और जब हम इस केस में आते हैं कि इनपुट इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट दिख नहीं रहा है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या करते हैं, यूपीएससी इज नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर यूपीएससी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बच्चा यूपीएससी कर सकता है इफ you have the right ingredients. And what is that ingredient, what is that trait? देखो, ये जो तैयारी मोस्ट बच्चे कर रहे हैं, बर्नआउट हो रहे हैं, that is unstructured preparation, unstructured burnout. That is not hard work. Hard work is structured preparation for 1 to 2 years, and that is the trait that UPSC requires. This preparation requires structured preparation, because let's have it, it's a marathon, not a sprint, but it is won by daily sprints. और daily sprints के लिए आपको ABCDE ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबी जर्नी है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, how can I stay stable in this long journey, instead of asking how many hours should I study. Hours तो जो लगने हैं, but stability बहुत important है. So let's dig in towards ABCDE, the traits that you need to have to actually conquer this examination and conquer yourself. ABCDE इस तरीके से मैंने इनको अरेंज किया है कि आपको हमेशा याद रहे. A is for awareness. If you need to have structured preparation, the single most important trait in this examination, you need to be aware. Aware about what? 2 levels. Self-awareness and awareness of the exam. Let's talk about the latter first. What is awareness of the exam? Most students actually start studying maybe history, geography, polity, but they have no clue about the syllabus. Their preparation never starts with PYQs. Let me tell you, just looking at the syllabus and reiterating it to yourself again and again, and PYQs, doing them regularly would save you years of preparation, because you will be going in the right direction. Otherwise it's going डायरेक्शनलेस. तो अवेयरनेस ऑफ द एग्जाम तो ज़रूरी है ही, और आपको पता है, कई बार बता भी चुकी हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ? सेल्फ अवेयरनेस की तो कोई बात ही नहीं करता है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एन एग्ज़ाम जहाँ पर हमको एक बहुत हाई पोजीशन मिलने वाली है, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए डिसीजंस बनाएंगे. जब हम खुद के लिए डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या बनाएंगे. तो ये जो क्वेश्चंस हैं,
what should be my strategy, what should be my way to go, this is your own thing. बट ये कैसे आती है? सेल्फ अवेयरनेस से, खुद के बारे में जानने से। खुद को समझना पड़ेगा मेरे पढ़ने का तरीका क्या है, कौन से पढ़ने का तरीका मेरे लिए वर्क करता है। क्योंकि लेट्स हैव इट, हर एक बच्चे के लिए वीडियोस देखना काम नहीं आएगा, हर एक बच्चे के लिए नोट्स देखना काम नहीं आएगा, हर एक बच्चे के लिए मे बी कोचिंग ज्वाइन करना काम नहीं आएगा। हर एक बच्चे की अपनी ज़रूरतें होती है, किसी को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है वो कोचिंग लेता है, किसी को सेल्फ स्टडी फोकस की ज़रूरत होती है वो सेल्फ स्टडी करता है, किसी को दोनों के हाइब्रिड की ज़रूरत होती है वो करता है। हर एक को समझना पड़ेगा उसके पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाया जा सकता है, लेकिन अपना तरीका ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ लगातार कर रहे हो लेकिन वो आपसे नहीं हो रही, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वे टू गेट थिंग्स डन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपेयर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, बट सक्सेस इज रिपीटिंग द सेम बोरिंग प्रोसेस एंड कीपिंग ऑन योर फीट। कीपिंग ऑन योर फीट इन द सेंस कि कीपिंग ऑन योर टोज, ताकि आप सारी चीज़ें एजिलिटी के साथ करते रहें। मैंने एक सिंपल सा तरीका ढूंढा कि अटेंशन स्पैन तो लिमिटेड हो गया है, अब नहीं देखी जाती वीडियोस, स्टार्टिंग में सब वीडियोस के साथ देखते हैं। मैं लिख लिख कर पढ़ना शुरू हो गई, मैं थोड़ा थोड़ा रिसर्च ऐड करना शुरू हो गई, जिससे मेरी प्रिपरेशन को मीनिंग मिले और मैं इंटरेस्टेड भी रहूं। सो वो मेरा तरीका था पढ़ने का, आपका तरीका कुछ और हो सकता है, बट आई कैन टेल यू, बी सेल्फ अवेयर, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन से एरियाज में आपको कितनी ज़रूरत है, कहाँ हेल्प चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पर आप ऑलरेडी अच्छे हो, कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत हेल्प चाहिए, तो सोच समझ कर टाइम इन्वेस्ट करें। गाइडेंस भी उनको ही फ़ायदा देती है जिनको पता हो व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू आस्क। So know about yourself, introspect, be self-aware, because this is the single most important thing between guidance and misguidance. कोई आपको misguide नहीं करेगा, लेकिन गाइडेंस को अपने लिए बेस्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए खुद के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब से ही इंट्रोस्पेक्ट करें। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, हैव अ स्मॉल राइटिंग पैड और उसमें लिखो what has worked for me and what has not, और ये बिना कुछ करे समझ नहीं आएगा, start doing it, है ना। 5 frogs are sitting on a lily pad and one has decided to jump. How many are there? It's an old riddle, many of you must have heard. Still 5, because one has just thought of jumping. It has not still jumped yet. तो सेल्फ अवेयरनेस बैठे बैठे नहीं आएगी, जब तक आप जंप नहीं करोगे या फॉल डाउन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। स्टार्ट वर्किंग एनर्जेटिकली, अपने आप सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, बट कीप नोट ऑफ दैट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और आई कैन अश्योर यू, 2-3 महीने की गाइडेंस होती है, 4 महीने की 8 मैक्स। जो बच्चे सेल्फ अवेयरनेस है, वो अपना सेल्फ अवेयर है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। दूसरा है बी फॉर ब्लूप्रिंट, अ प्लान एंड बैलेंस। बैलेंस एंड ब्लूप्रिंट आर 2 की एरियाज जहां पर बच्चों को काम करना चाहिए। आपको स्पॉन्टेनियस नहीं बनना है कि आज जो मन किया वो कर लिया, आज कोई और सब्जेक्ट कर लिया एंड सब कुछ बिखरा बिखरा है। Planned effort is extremely important. For that you need to have a blueprint. आपको पता होना चाहिए what to study, how much to study, कितना काम आपके लिए काफ़ी होगा। That is very very important. Balance is very very important. You will always see that UPSC would reward balance. जहाँ आपका बैलेंस बिगड़ गया वही कारण होता है हमारे फेलियर का। तो बैलेंस लेकर चले। सारे ही सब्जेक्ट्स आपकी आंखों के तारे हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। मंडे टू सैटरडे अपनी फोकस स्टडी करें। फोकस स्टडी इज़ बेटर देन मंडे टू संडे। अपनी सोशल लाइफ को कम्प्लीटली किल नहीं करना है, एक दिन ऑफ रखें ताकि आप दोबारा से आपका पढ़ने का मन करे। मंडे टू सैटरडे फोकस्ड वे में टाइमर के साथ पढ़ो। मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू प्ले बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि लैपटॉप पे पढ़ती थी तो यूट्यूब पे मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लेती थी, उससे वो मेरा टाइमर का काम भी करता था और मैं पढ़ती भी रहती थी और बोर भी नहीं होती थी। तो मंडे टू सैटरडे मैं ऐसे करती थी, लेकिन संडे आई यूज़ टू मेक श्योर दैट आई टेक अ डे ऑफ, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स एंड सोशल बींग्स। और अगर मंडे टू संडे ये आदत मेरी 1 महीना कर लूँगी, 2 महीना कर लूँगी, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता। So Monday to Friday, focus study, keep a balance, have a blueprint. Every day you should know what to do, how much you do, and आपके targets complete होने चाहिए. It's not 70% of your target, not 80, 100%, and
just have your targets selectively. Okay, so with a plan, even 6 stable days are powerful, and without a plan 7 दिन भी बेकार है, 7 क्या 70 दिन भी बेकार है. And I've lived that. I've been on both the sides of the journey. Now then, third is clarity and calmness. Well, अगर clarity होगी तो calmness आएगी, वो तो है ही. More sources will lead to more content but lead to less retention, and less retention होगी तो more anxiety होगी. So I hope you have understood the connection between clarity and calmness. Clarity के रिसोर्सेज की क्लैरिटी होगी तो ज़्यादा रिटेंशन होगी, ज़्यादा रिटेंशन होगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपकी एंजाइटी लेवल्स कम होंगी. एक गोल्डन रूल दे रही हूँ जो मैंने हमेशा फॉलो करा है, दैट इज़ 1 सब्जेक्ट 1 सोर्स 1 वीक. 1 वीक कम से कम हर सब्जेक्ट को देना है. ये नहीं कि स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रहे हो, 1 घंटा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलेट ही नहीं कर पाओगे. इमेजिन करो आप 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो. स्कूल में ऐसे ही करते थे ना, वी यूज्ड टू बी इन स्कूल, और स्कूल में 1 साल हम 5-5 6-6 सब्जेक्ट्स हर रोज पढ़ते थे. कितना ही एग्जाम तक याद रहता था, कितने ही इंटरकनेक्शन बनते थे. यहाँ पर इंटरकनेक्शंस आर रिवॉर्डेड. इंटरकनेक्शंस बनते हैं मेमोरी के साथ, और मेमोरी बनती है लगातार एक स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड में. आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट, एक सोर्स, कम से कम 1 हफ्ता, ट्राई एंड फिनिश 1 मेजर चंक ऑफ इट. जैसे मैं आपको हिस्ट्री की एग्जांपल देती हूँ. अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री का एक साइजेबल पोर्शन, एक सब्जेक्ट एक दफ़े कंप्लीट करो 1 वीक में. मे बी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दो. अगले वीक में आप चाहे पॉलिटी स्टार्ट कर लो, बट एटलीस्ट एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू से शुरू तो नहीं करना पड़ेगा. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पेज 1 एंड स्टॉप इन बिटवीन, नेक्स्ट टाइम यू रीड इट से 1 मंथ लेटर, आपको लगेगा सेंस ऑफ कंप्लीशन भी नहीं आएगी और आपको फिर से पेज 1 से करना पड़ेगा. बट व्हाट अबाउट द डेज यू हैड इन्वेस्टेड अर्लियर? इट विल अमाउंट टू नथिंग. सो 1 सब्जेक्ट 1 source 1 week is the minimum thing. Later on when you have revised twice or thrice, then आप अपने दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स रख सकते हो, लेकिन at this point of time absolutely no. Okay, so clarity आएगी तो you will stay calm. D for daily momentum. That is very important, the thing I just explained. Burnout is not hard work. Just thinking that your eyes are sore, your body is sore, and you're studying like tirelessly, it is just unstructured effort, guys. You need to understand the difference between hard work and burnout. Hard work is actually structured effort. It is smart effort. ठीक है, स्मार्ट वर्क इज अ सबसेट ऑफ हार्ड वर्क, बट बर्नआउट हार्ड वर्क नहीं है. यूपीएससी नीड्स योर डेली मोमेंटम, नॉट इंटेंसिटी. आज मैं कोशिश करूँ कि मैं इकोनॉमी सारी की सारी फिनिश कर दूँ अगले 4-5 दिन में, और फिर उसको छूऊँ बिना, मेरे लिए तो वो ज़ीरो एफर्ट है. इंक्रीमेंटल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है आपको. डेली के डेली आपको अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप दिन में 5 से 6 टास्क रख रहे हो स्टार्टिंग में, 1 घंटा न्यूज़पेपर, 2 घंटे एमसीक्यूज, 3 घंटे मे बी दिस सब्जेक्ट, फिर अगले घंटे ये सब्जेक्ट, आपका फोकस सीखने में नहीं होगा. यू विल नॉट बी फोकस्ड ऑन लर्निंग. योर फोकस वुड बी ऑन एक्चुअली फिनिशिंग द टास्क. जब ध्यान टास्क में होता है ना तो सीख रुक जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है. बट यूपीएससी कमांड्स बैलेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी and achievement of goals. So in the first go, just focus on momentum and not moving between the tasks. टास्क कंप्लीट करना आपके लिए अभी सही नहीं है, 10 टास्क नहीं. सो another golden rule, only 2 tasks per day. Keep your day very very simple. That's it. स्टार्टिंग में कुछ भी हो जाए, मल्टीपल टास्क नहीं है. जीएस और ऑप्शनल साथ में चल रहा है तो सिर्फ जीएस और ऑप्शनल ही रखो, वीकेंड्स पे टेस्ट रखो. अगर रेगुलर टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ टेस्टिंग और अपना व्हाट डू यू कॉल जीएस करो और वीकेंड्स पे ऑप्शनल करो. बट 3-3 4-4 टास्क हाउएवर स्मॉल मत रखो, क्योंकि आप टास्क के बीच में होवर करते रहोगे, फिर सीख रुक जाएगी. व्हेन यू वांट टू लर्न यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, यू नीड टू थिंक थ्रू. उसके लिए समय लगता है और पहले 4 से 5 महीने वो समय कमांड करते हैं. एंड यू हैव गोल्डन टाइम फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months. You're already ahead of students who are going to start in June and July. ओके, सो डेली मोमेंटम के ऊपर फोकस करो, अपनी नींव को मजबूत करो.
फाइनली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज इमोशनल स्टेबिलिटी। बच्चे क्यों क्विट करते हैं? एक तो बोरिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत बोरिंग लगता था सेम चीज़ बार बार पढ़ना। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आती है, चार दीवारों में हमको पढ़ना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कंपैरिजन, हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रीज़न लेकिन क्या होता है, ये तो सिर्फ इफेक्ट है, दिस इज जस्ट इफेक्ट, बोर्डम, लोनलीनेस, कंपैरिजन। एक्चुअल रीज़न इज डिस्ट्रैक्शन। जैसे अर्जुन ने चिड़ी की एक आंख के ऊपर ध्यान दिया था, चिड़ी की आंख के ऊपर ध्यान दिया था, आपको हॉर्स ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे, आप चाहें या ना चाहें। तो ये जो छोटा सा इडियट बॉक्स हमारे पास होता है फ़ोन, मैं कहूँगी कि उससे दूर रहें। सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, जितना आप देखोगे उतना अपनी लाइफ में कमियां दिखेंगी, उतना डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतना डिप्रेशन आएगा, कोई फायदा नहीं है। Instead, focus on minimizing distractions through your idiot box. And I do say it with a lot of responsibility. I know that balance hai, social life hai. I'm not telling you to kill your social life. But I am only telling you to keep your digital life at bay and build a social life. That's where mental health comes into picture. I just told you कि weekends पे go out. Just don't stay at one place. Maybe 15 days में एक बार बाहर जाओ, बाहर नेचर में पढ़ो. That will give you a lot of positivity. Humans के साथ contact नहीं छोड़ना है, बट डिजिटल कॉन्टैक्ट दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फोमो, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आपका फ़ोन आपके हाथ में रहेगा, दिन सुबह की नींद फ़ोन के साथ खुलेगी, तब तक आप एक स्टेबल स्पेस में हो ही नहीं सकते हो, बिकॉज आई हैव बीन देयर। कितना भी आप बैलेंस कर लो, हाँ, लेकिन देयर वुड बी सर्टेन माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो बैलेंस कर लेते हैं। इफ़ दे कैन बैलेंस, यू कैन टेक योर डिसीजंस, बट मेजॉरिटी बच्चों के लिए 1-1.5 साल इसको बिल्कुल दूर कर दो। समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो जब डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी और ह्यूमन इंगेजमेंट्स बढ़ जाएंगे, अपने आप ये बोर्डम, लोनलीनेस, कंपैरिजन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर रियलिटी में आप जियोगे, इल्यूजन में नहीं जियोगे। सो की to emotional health is actually perceiving and understanding your emotions and managing them. Spend time with your friends and family, and don't ignore that completely. But of course disciplined way के साथ करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो, you can't be used to it. But I hope you understood the crux. After all, we are social beings and humans. Although I've just written an E, but let me talk about F also. Focus. Awareness, blueprint, balance, clarity and calmness, daily momentum, emotional stability, and focus. This is so important. One thing at a time wala attitude is so important. Do your best. Whatever you do, you give it your best foot forward. अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत easy होता है दूसरा टैब खुलना, बट अगर आपने अपने लिए 10-15 दिन के लिए वो मोमेंटम ले आए फोकस का, कि जब मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं 15 मिनट का ही के लिए पढ़ूँ, पर वो 15 मिनट अगर मैंने डिसाइड किए हैं, इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि सिर्फ उसी पे फोकस हो। एक्चुअली हमारी लर्निंग बनती ही तब है, मन में क्वेश्चंस ही तब आते हैं जब फोकस्ड स्टडी करो। तो अगर फोकस कम है, अटेंशन स्पैन कम है, तो आप 15 मिनट पे आ जाओ। अगर थोड़ा ज़्यादा है 25 मिनट के बाद आप 10-15 मिनट ले लो ब्रेक। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो वो 25 मिनट में हिलना भी नहीं है वहाँ से। अगर आपने ये चीज़ कर ली, तो आपकी जो रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, क्वेश्चनिंग, एनालिसिस, ये इतना बढ़ेगा, आप अपने आप में 6 महीनों में खुद ही डिफरेंस देखेंगे। आई थिंक 6 महीने मैंने ज़्यादा बोल दिए, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप फोकस करना सीख जाते हो। इट्स सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल ही सबसे मुश्किल काम होता है। सो ऑल द थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू आर सर्टन बेसिक ट्रेट्स ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट, जो सेल्फ अवेयर है, एग्जाम को समझता है, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता है, बिकॉज ही विल सेव ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, बैलेंस्ड है, एक ब्लूप्रिंट के साथ चलता है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्लैरिटी रखता है अपनी चीज़ों को लेकर, वन सब्जेक्ट, वन सोर्स, वन वीक एट अ टाइम,
एंड देन डेली मोमेंटम के ऊपर फोकस करता है, बम्बार्ड नहीं करता है 10-10 टास्क के साथ, और सीखने के ऊपर फोकस करता है. ही बैलेंसेस टाइम एंड लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. एंड इमोशनल स्टेबिलिटी में फिजिकल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है. इमोशनल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल और फिजिकल स्टेबिलिटी से आती है. इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इंस्टेबिलिटी का कारण क्या है? मैं एस्पिरेंट की बात करूंगी. व्हाट इज द कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी? सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल लेवल पर पढ़ाई नहीं हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत बोझ है, ये करना है, वो करना है. तो जब आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल इसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई. तो इमोशनल स्टेबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. पढ़ाई की वजह से तो दुख खत्म हो जाएगा जिंदगी में. उसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम बीइंग ह्यूमन. Actually being kind to yourself, having a physical space where you are being with your parents, with your friends and all of that, and digital detox. जब digital detox होएगा तो definitely you will see a lot of improvement on your mental health. 90% प्रॉब्लम तो यहीं पे ही खत्म हो जाती है. जो 10% है आपका माइंड इतना स्टेबल होगा सेल्फ अवेयरनेस से, वो भी हो जाएंगे. और कुछ ना कुछ तो लाइफ में होता ही रहता है ना. उसको हम डील करने के लिए हमको एटलीस्ट किसी लेवल पर तो स्टेबल रहना पड़ेगा. व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? एटलीस्ट द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, एटलीस्ट द डिजिटल डिटॉक्स. जब ये हो गया तो ये जो हमारे हाथ में उतना 100% नहीं है, कुछ लेवल तक मैनेज तो हो सकता है. सो आई वुडंट से कि हर बार आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, एटलीस्ट लाइफ में किसी एरिया से तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो इमोशंस भी एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं. हर जगह से इंस्टेबिलिटी आएगी तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो होगी ही होगी. सो that is very very important. Structural creates mental stability and mental stability leads to emotional stability. So an ideal, I would not say an ideal, but a serious aspirant who really wants to get through this exam and get through this exam with flying colors. I'm not talking about success and failure in this case. He is going to be a learned person and opportunities are going to be open, he or she. Focus on retention. Focus on one subject, one source, 1 week, that's it. Focus on momentum over pressure and intensity. Pressure से कभी पढ़ाई नहीं होती है. मेहनत आपको लगेगा, बर्नआउट आपका हार्डवर्क नहीं होता है. बार बार कह रही हूँ. तो बर्नआउट अगर हो रहा है तो ये मत सोचना कि मेरा बर्नआउट हो गया तो मैंने बहुत मेहनत कर ली. नहीं, कामनेस, स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ प्रेपरेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता है दैट यू विल नॉट होन योर सेल्फ एंड कम आउट विक्टोरियस. ओके, सो दैट्स इट. ओके, रिमेंबर that keep it structured, keep it precise, keep it concise, have mental stability because emotional stability तो उसी से आएगी. I wish you good luck and I hope you remember these 6 golden rules A, B, C, D, E, F of structured preparation and mental and emotional stability. They are very, very practical and has come handy to me always and will help you too. So if you have this, you are a great skilled warrior always. All the swords in the world, the best swords, seek them out. They are going to help you. But first, work on yourself because you are the captain of your ship and hero of your story. I wish you all the best and I'll see you next time. Thank you so much.